students, I am Maulesh Acharya. Today I am going to start with the 10th lecture of 11th Science Physics. In last lecture we had discussed about some numericals of errors. Today I am going to start a new topic and which is very important for only for MCQs and some mathematics which we required in physics. Okay, so the topic name is significant figure. Significant figure. Significant figure. It is important for MCQ only. Important for MCQ. Okay. Now, what is significant figure actually? That I am going to tell you now. Suppose I have a pencil. Okay, I have a pencil like this or any pen. I am measuring from this. So suppose I am measuring from meter scale or simple scale. Suppose it is at a 0. I am using centimeter scale, so it is 0 centimeter. And here I will get, suppose it is a 12.3 and suppose it is 12.4 centimeter. Okay, so my reading comes to in between of 12.3 and 12.4. Okay, now what do you think now? आप कैसे पता कर सकते हो आपका रीडिंग आया है 12.3 और 12.4 के बीच में. So what you assume that you will assume that suppose the reading is 12.38 centimeter, 12.35 centimeter, 12.36 centimeter, 12.37 centimeter. We have the assumption like this. Suppose ये 12.38 होगा, 12.35 होगा, 12.36 होगा, 12.37 कुछ भी हो सकता है. That we don't know actually what is actually that, वो हमको पता नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं. सो जो नंबर है 1, 2 and 3, तो 3 सब में फिक्स है. व्हाट इज चेंजिंग? लास्ट वन इज चेंजिंग. 8 चेंज हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है. सो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली? सिग्निफिकेंट फिगर इट मीन्स suppose we have a fixed number or reliable number. So we have reliable digits. So we have a reliable digit or we can say fixed digit. I am using simple language. It is fixed digit or reliable. Reliable is a physics language. Reliable digit. So we have reliable digit is how much? Which one? 1 है, 2 है और 3 है. But we have some uncertain digit that we don't know. Uncertain digit है, वो हमको पता नहीं है. तो जो ये 8 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो सब है uncertain digit. क्या बोलते हैं उसको? Uncertain digits बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Uncertain digit बोलते हैं. तो हम किसी भी नंबर को 12.38 मतलब फिक्स नंबर जो रिलायबल नंबर है और उसके साथ जो अनसर्टेन नंबर आता है उसके साथ हम उसको लिखते हैं, देन दिस इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर. दिस इज नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर. रिलायबल के साथ आपको अनसर्टेन डिजिट है उसको भी लिखते हैं. दैट इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर. सो क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो उसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है.
और कितने डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर है, दैट यू हैव टू फाइंड इट। एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपको नंबर दे देते हैं, वो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है वो आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। दैट टाइप ऑफ एमसीक्यू में आस्क फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर? It is significant number मतलब we have a number with reliable digit or fixed digit, with that we have some uncertain digit. It is known as a significant figure or significant number. Okay, so now I am going to write some laws. Without law हम वो यूज नहीं कर सकते, उसके भी कुछ लॉ है, तो वो कौन से लॉ है? That I am going to tell you now. All the known zeros digit are significant. So laws of significant figure, laws of significant figure. Okay, ये 5 लॉ है, आपको याद रखने हैं। पहला लॉ है all non-zeros, all non-zero, zeros नहीं लिखते, all non-zero digits are significant. Digits are significant. Okay, वो significant number है। So for example, I am taking 1 2 888. Example is 1 2 888. Example is, next example is 38.383, 38.383. तो here आप देख सकते हो कि here there is a no zero. So आपके पास ऐसा नंबर है और उसमें एक भी जीरो नहीं है, तो आपको क्या करना है? सपोज एग्जाम में पूछा गया है कि 12,888 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, तो आप कह सकते हो कि तेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। और वी कैन से हियर भी 1 2 3 4 और 5 significant digit. We have 5 significant digit. Okay, now next law is all the zeros between two non-zero digits. All the zeros between two non-zero digits are significant no matters where the decimal point is it at all. Where the decimal point is if at all. इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा, सपोज you have example, I am taking 18006. This is non-zero number, this is non-zero number and this is also non-zero number. बस जो non-zero है, ये दूसरा non-zero है, इन दोनों के बीच जीरो जितने भी आ रहा है उसको आपको सिग्निफिकेंट में गिनना है। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट में गिनना है, बराबर है। तो 18006 मतलब 1 2 3 4 5, तो वी हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, नाउ सपोज आई एम टेकिंग विद द डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट वाला लेता हूं मैं, तो आई एम टेकिंग 38.002। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे भी ये नॉन जीरो नंबर, इसके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसको भी सिग्निफिकेंट गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो उसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ओके, सो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, वो नंबर में
दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आते हैं, चाहे वो नंबर डेसिमल पॉइंट वाला हो, चाहे वो नंबर डेसिमल पॉइंट के बिना का हो, then you have to calculate it is as a significant digit. Okay, so there is a second law. Please keep in mind all the 5 laws for finding that MCQ or solving that MCQ. Okay, the third law is, if the number is less than 1, if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point, third law, if the number is less than 1, third law is, if the number is less than 1, एक से कम है, मतलब 0.0 समथिंग होगा, then zeros on the right of decimal point, then the zeros on the right of decimal points, but to the left of the first non-zero digit r, but to the left of, but to the left of the first non-zero, left of the first non-zero digit r, left of the first non-zero digit are not significant, digit are not significant. मैं चौथा भी लिख देता हूँ साथ में, फिर दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. The terminal or trailing zeros, the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are without a decimal point are not significant, not significant. Okay, so let's see the example. 0.008566, इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं. 0.008566 एंड इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं. एग्जाम्पल 18500. ओके, देखते हैं इसमें क्या है. तो क्या दिया है हमारे पास, जो नंबर है वो एक से कम है, एकदम कम है. देखो 0.008566. तो उसमें क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड पे आप चले जाओ और जहां तक नॉन जीरो नंबर नहीं आता है, मतलब नॉन जीरो नंबर नहीं आएगा मतलब क्या होगा, उसके आगे सबके सब जीरो होंगे. क्या होंगे, सबके सब जीरो होंगे. तो वो सब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में, फिगर में गिनना नहीं है. तो दिस इज आर नॉट अ सिग्निफिकेंट
So significant number is 1, 2, 3 and 4. There are 4 significant digit. There are 4 significant digit. ओके क्या है लॉ? तीसरा लॉ क्या है? अगर आपके पास एक से कम है, बराबर एक से कम नंबर है, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो उसको गिनना नहीं है, जहां तक नॉन जीरो नंबर ना आए तहां तक, बराबर। सपोज आई एम टेकिंग इज 0.8566, तो यहां पे तो कोई भी जीरो नहीं है, तो आप कर सकते हो कि ये चारों चार सिग्निफिकेंट है। ओके यहां पे 10 जीरो लगा दो, 50 जीरो लगा दो, then you have significant number is same, it will be 4 digits. Okay now next question क्या है, मतलब next जो लॉ है वो क्या है? वो लॉ में ऐसा बोला गया है कि सपोज वी हैव अ नंबर बट इन दैट नो डिजिट्स, सॉरी नो डेसिमल पॉइंट, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट नंबर लिख रहे हो और जो भी नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में कोई नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद सब के सब जीरो आते हैं, जितने भी जीरो हो वो आते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में गिनना नहीं है, मतलब वो सिग्निफिकेंट डिजिट में गिनना नहीं है, बराबर। यहाँ पे 818500 50 जीरो लगा दो आप, बट इसका सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बराबर। बट कीप इन माइंड उसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए नहीं। ओके सो हियर वी हैव 1 2 3, ये नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, सो वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके सो दोनों लो क्लियर हो गए। तो पहले लो में क्या है? एक से कम हो तो राइट हैंड साइड जो डेसिमल के उसके राइट हैंड साइड के जीरो गिनने नहीं है, जहां तक जीरो हो वहां तक गिनने नहीं है। उसके पास सपोज नॉन जीरो नंबर आता है तो आपको गिनना है, वहां से गिनना है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, वो नंबर पूरा का पूरा है, तो लास्ट में जो जीरोस आते हैं, जो कोई भी लास्ट नॉन जीरो नंबर उसके बाद जितने भी जीरो आते हैं उसको भी डेसिमल सॉरी इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में गिनना नहीं है। और सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कैलकुलेट मतलब देखना है तो कितना है इसमें? 1 2 and 3। सपोज यहाँ पे 1854444 ओके, तो जहां तक नॉन जीरो नंबर है वहां तक सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट जीरो लगा दोगे पीछे कितने भी जीरो तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं गिने जाएंगे। ओके दिस इज द फोर्थ लॉ। नाउ लास्ट वन इज द ट्रेलिंग zeros in number with the trailing zeros last the trailing zeros in a number with the trailing zeros in a number with decimal points are significant. In a number with decimal points are significant numbers, ऐसा लिखते हैं, चलो आर सिग्निफिकेंट। ओके सो फॉर एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं हम अपने, तो 18.006 और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 3.3380। ओके तो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, बराबर है। तो आप अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट है तो जितने भी जीरो आएंगे तो आपको वो कैलकुलेट करना है, मतलब देखना है कि उसमें ये सिग्निफिकेंट नंबर है, उसको कैलकुलेट करना है, मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें आपको गिनना है। यहाँ पे भी आप गिन सकते हो यहाँ पे। ओके
तो ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये नंबर है, इसमें ये 2 जीरो है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 1 जीरो है, बराबर है। तो उसमें उसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट होना ज़रूरी है, बराबर, तो ही आप गिन सकते हो कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, बराबर है। ये सब लॉ है, उसके ऊपर एक एग्जांपल है। तो आपका एक्सरसाइज नंबर आई एम राइटिंग 2.10, जो आपका एक्सरसाइज है आपकी बुक में दी है उसके 2.10, तो मैं लिखता हूँ उसमें ए 0.007 मीटर स्क्वायर, बी इज 2.64 into 10 raised to 24, 2.64 into 10 raised to 24, 0.2370, ओके, मैं यहाँ पे केजी है, यूनिट केजी है। सी 0.2370 ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। हमको यूनिट के साथ कोई लेना देना, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करो तब 6.320 जूल, 6.320 जूल, 6.032 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 6.032 न्यूटन मीटर स्क्वायर, and last one is 0.000630, 0.0006302, ऐसा है ना, 6032, ऐसा ही है 6032, ओके, ऐसे आपको दिया है। तो ये 0 से कम है, तो 0 से कम होगी तो उसमें अपना तीसरा लॉ लगेगा, उसके इस साइड के 0 गिनने नहीं है, तो एक ही डिजिट है इसमें, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, डिजिट है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें देखो आप, मैंने बोला 2.64 10 raised to 24, मतलब इसके पीछे 24 है, बराबर है, 24 जीरोस है, तो ये 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ये तो पीछे कितने भी जीरो लगा दो, नो प्रॉब्लम, ओके ना। यहाँ पे देखो ये डेसिमल वाला है, तो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पे हमने ये लॉ का यूज़ किया है। देन यहाँ पे वी हैव 4 4 एंड 4, so here we have 4 significant digit, तो यहाँ पे भी हमने ये लॉ का यूज़ किया है। तो सेम वे हियर वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये लास्ट लॉ का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने थर्ड लॉ का यूज़ किया है 0.000, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट figure and significant digits, okay. In next lecture I will discuss about addition, subtraction, division and multiplication of significant digits, and there are some laws of round off that I will teach you in the next lecture, okay. So in homework you have to write all these 3 laws, all these 5 laws at least 2 times, and if you have any doubt please do WhatsApp on school mobile number. Thank you.